नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सविता और आज मैं जा रही हूँ बर्लिन, द कैपिटल ऑफ जर्मनी एंड द हिस्टोरिक सिटी पॉट्सडम। और अगर आपको मेरे साथ देश विदेश का भ्रमण करना है तो सब्सक्राइब करें नित्य शोभा को, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द पहुँचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं पहुंच गई हूँ जर्मनी में। देखिए ऊपर ये येलो ट्रैम लाइन। और सबसे पहले हम जाएंगे बर्लिन वॉल म्यूज़ियम। कोल्ड वॉर के दौरान बर्लिन को ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में एक दीवार से डिवाइड कर दिया गया था। तो लीजिए मैं पहुंच गई हूँ बर्लिन वॉल। इस जर्मनी के लोगों को इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी के लिए वे इस तरह से कार के सामने इंजन के नीचे छुपकर, जो सामने कार में दिख रहा है, ऐसे भागते थे। इस म्यूज़ियम में पूरी हिस्ट्री बताई गई है। इस जर्मनी के लोगों को बहुत ही कम समय, 2-3 घंटे दिए गए आप अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला, सुबह उठकर उन्होंने देखा घर के सामने दीवार है। ये दीवार को फिर पुख्ता बनाते गए और कई लेयर्स थे उनको रोकने के। ये दीवार 1961 में बनकर तैयार हुई और ये देखिए कैसे सूटकेस में भरकर ये भागने की कोशिश कर रही है और 1990 में ये टूट गई। अभी हम लोग चेक पॉइंट चार्ली, ये देखिए लिखा हुआ, यहाँ से गुज़र रहे हैं। और ये कोल्ड वॉर के दौरान मेन बॉर्डर क्रॉस करने के चेक पॉइंट था। देखिए ये कैसे यहाँ पे ये रहे चेक पॉइंट चार्ली। आगे हम बर्लिन वॉल बनी भी कई वर्षों तक और ये टूटी भी कई वर्षों तक, लेकिन कुछ पोर्शन अभी भी बचा के रखा गया है। Chance to see the wall because we were the wall. There is the police. They are not here to guard the wall. They are here because we have a VIP luxury hotel. The president of Syria in the city. Big concert hall and the Germany and Berlin were divided into 4 allied sectors. So sector Berlin divided. Also das ist the end of this. But first of all, और मैं आ गई हूँ इस बर्लिन विक्ट्री कॉलम के सामने। ये 1864 में बनी ये कॉलम। अभी आज बारिश हो रही है, बारिश की फुहारे, सौंधी खुशबू में हमने बहुत ही आनंद लिया इस जगह का। so if you look to the right now, there's a very huge building behind it. There's a crane. That's the residence and office of the Chancellor of Germany, the Chancellery of Germany. We have just passed it by. To the left, have the main railway station. Last dome is the Reichstag, the real Parliament building. और अब मैं आ गई हूँ मोनुमेंट ब्रांडेनबर्ग गेट बर्लिन के सामने। तो चलिए इस जगह को अच्छे से देखते हैं। ये रहा सामने ये मोनुमेंट ब्रांडेनबर्ग गेट। ये बहुत हैपनिंग प्लेस है, टूरिस्ट से भरा हुआ, शॉप्स एंड स्ट्रीट फूड भी मिल रहे हैं। तो ये सामने है गेट। ये गेट, ये मोनूमेंट नेशनल सिंबल ऑफ रीयूनिफिकेशन, फ्रीडम, पीस एंड यूनिटी है।
हमारे पीछे ये गेट है, मोनूमेंट। चारों तरफ का एक नज़ारा ले लेते हैं। पीछे है सिटी पैलेस। Huge building left hand side is the Prince Heinrich Palace, now the university building. If you look to the right hand side, the pink building, this is the German State Opera House. Behind the Opera House there is a church which is the Catholic Christians in this area are a Royal Opera House, now the German. This is on the right hand side. All buildings were it was destroyed in the war, so they reconstructed it, but you see the beautiful style right hand side. This is left hand side, and the oldest museum is what we see. It's Berlin's biggest church, a Lutheran one, a Protestant. To draw your attention to the left, in the a Jewish synagogue in the background, left hand side. It looks a little bit as if it was a mosque. It's not. It's a student. And to the beginning of the 1930s, the community of the Jewish community of Berlin counted more than one, because they converted here in the 1530s already. The Reformation was in the old style, really a medieval church, left hand side. Then besides the St. Mary's Church, with 65 meters tall, at a height of 207 meters, a rotund. We pass by the City Hall of Berlin, the 1230s, the oldest. Yeah, 1237, that. I mean, the wall was built of reinforced concrete, so such a wall does not fall in one night. So it was like fun, it was like happening here at this piece of the wall. And then many years later, nearly 20 years later, the city of Berlin designs descriptions of the paintings here. Guided tours are being organized. And this is, for the moment, Berlin's most famous piece of the wall. And because it was painted from the east side, it's called East Side Gallery. We want to give you the chance of a photograph of the East Side Gallery, and we will stop here. And that's a painting of two old men kissing. Have you seen that? Have you heard of that? Like a ceremony of saying hello. Hello, my brother. Never stops here. And I walk you just a few steps and you go to this piece of the wall, to this. अब मैं पहुंच गई हूँ ईस्ट साइड गैलरी, ये बर्लिन वॉल जो है उसके सामने, और हम देखेंगे डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग जो यहाँ के लोगों ने ही इसको किया है। और फिर द फेमस पेंटिंग द टू ओल्ड मैन किसिंग, दैट वाज द रशियन वे ऑफ सेइंग हेलो ब्रदर टू ईच अदर। तो ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये रहा वो फेमस पेंटिंग। एक एक पिक्चर अ पीस ऑफ आर्ट है। हम इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। Was divided when the wall existed, and where we have, so this is a really very symbolic place. The Japanese presented Berlin many trees. Subway is going, U-Bahn underground, torn down, and it had all to be, you have a beautiful panoramic view already.
आज दोपहर का लंच हम लेंगे संगम इंडियन रेस्टोरेंट में। आप अगर बर्लिन आए तो यहाँ भोजन ज़रूर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ जो ओनर हैं पाजी सरदार जी, खाना तो बहुत ही लज्जतदार और शानदार था, स्वादिष्ट था। साथ में इनकी मेहमान नवाजी भी काबिले तारीफ़ है। East Germany now, and we reach the city of Potsdam, of the federal state of Brandenburg. Okay, ein bisschen geradeaus. Alice, take a picture and then we come back. लीजिए, हम पहुंच गए हैं पोट्सडम जर्मनी। और ये सामने जो दिख रहा है ये है एक पैलेस, और इसको सेसलहॉफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश ट्यूडोर मैनर हाउस की तरह बना हुआ है, काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत ही शानदार है। सामने एक लेक है और ये फेमस है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के फेमस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ था। इसकी आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है और आपको बिल्कुल आकर्षित करेगी ये अपनी ओर। कुछ बेहतरीन समय यहाँ बिताने के बाद हम चल पड़े पोट्सडम द हिस्टोरिक सिटी की कुछ और चीज़ें देखने के लिए। Country free for many religions, and so that people from other countries who were discriminated, for instance, noch ein bisschen geradeaus. For instance, yeah, and here not only have the French church, we also have a church built for people who had come to Potsdam from Belgium. Right hand side, this is the Katham, principally built for the workers of Belgium who had. और मैं आ गई हूँ इस पीटर एंड पॉल चर्च, पोट्सडम चर्च के सामने। ये रोमन कैथोलिक चर्च है और ये बेल्जियम से आए लोगों के वर्कर्स के लिए बनाया गया। और राइट आपको बाईं तरफ ये जो रेड ब्रिक के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये डचेस क्वार्टर है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। House, typical atmosphere in Potsdam. We will make, in the city had many military barracks, and of course a church for the soldiers was especially built. The church was bombed, so here we have last of this panorama of the city. I walk you a few meters to see. मेरे पीछे ये बिल्डिंग फिल्म म्यूजियम पोट्सडम है और उस साइड में है सिटी पैलेस पोट्सडम। ये काफ़ी मेन जगह है इस पोट्सडम सिटी का। उधर रहा सिटी पैलेस पोट्सडम। फिल्म म्यूजियम पोट्सडम। और इधर एक मेला लगा हुआ है, जाइंट व्हील वगैरह भी है। आपको अगर तो पोट्सडम का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों से मिलूंगी अगले सफ़र में किसी सुहानी देश में, किसी सुंदर देश में। तब तक के लिए बाय बाय।